بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، میں ڈپلومے سے بات نہیں کروں گا چونکہ مجھے پتا ہے میرے سامنے کون ہے۔ ایک دم سیدھی سادی زبان میں، آسان لفظوں میں، ماں بہنوں سے، بچوں سے، میرے بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا سکوت اور چپ رہنے کی زحمت کریں چند منٹ۔ میں زیادہ ڈسٹرب اور زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ پہلا سوال جو کیا گیا اس پروگرام کے نام کے حوالے سے، پروگرام کا نام جو ذہن میں اور دل میں آیا وہ میں نے رکھا مولا علی افطار سیمینار۔ دنیا افطار پارٹی رکھتی ہے، میں لفظ پارٹی کو پسند نہیں کرتا ہوں، سیمینار رکھتا ہوں۔ ٹھیک، کیوں مولا علی؟ چونکہ امت اسلام میں اگر آپ غور کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جس صحابی اتم عقل نے ساتھ دیا، سب سے زیادہ ہر میدان میں، خیبر ہو، خندق ہو، بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، مسجد ہو، میدان ہو، علم ہو، سخاوت ہو، ہر میدان میں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ۔ اکثر صحابی وہ ہیں کہ جو پہلے کفر تھے بعد میں ایمان لائے۔ علی کرم اللہ وہ ہیں کہ جو نہج البلاغہ ان کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ میں وہ واحد نبی کا صحابی ہوں کہ جس نے کبھی بھی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پاکستان کے اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے مولانا مفتی، ان سے بھرے مجمع میں پوچھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ میں اور حضرت عمر میں کون افضل ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ ان کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں، میرا جملہ نہیں ہے، میں تو جسارت نہیں کر سکتا۔ عظیم اصحاب ہے، بچوں سن رہے ہو غور سے؟ میں آپ سے بہت ہی اہم جملہ بیان کر رہا ہوں، پھر آگے بڑھوں گا۔ کہا کہ تمام اصحاب میں ہم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتے ہیں، مگر جب علی کا نام آتا ہے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو کہا سنو ایک فرق بتا دوں، بڑے پیار سے کہا سنو، حضرت عمر اگر سجدہ نہ کرتے کافر کہلاتے، ہے یا نہیں بھئی؟ اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو مسلمان کیسے ہوتے؟ سجدہ نہ کرتے تو کافر کہلاتے، اور علی اگر سجدہ نہ کرتے تو اللہ کہلاتے، چونکہ نصیریوں نے اللہ کہنا شروع کر دیا تھا علی کو۔ تب حضرت علی نے کہا کہ میں اللہ نہیں ہوں، مجھے اللہ مت مانو، دیکھو میں سجدہ کر رہا ہوں جس کا وہ اللہ ہے۔ سمجھ گئے؟ لہٰذا یہ جو خلیفہ راشدین میں آپ کے اور ہمارے چہیتے خلیفہ نبی، جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا، قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا نگر ہوں، سٹی آف ایجوکیشن، اور علی اس کا فولڈر ہے، دروازہ۔ آج کی لینگویج میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، بچوں فولڈر سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو؟ ایک فولڈر میں کتنا بھی فولڈر رکھ لو اگر کیپیسٹی ہو، لاکھوں کروڑوں، ٹھیک، ایک لائبریری میں کتنی کتابیں آ جائیں گی؟ 1000، 2000، 4000، 40000، 50000، بٹ ایک فولڈر میں کروڑوں کتابیں رکھ لو۔ فولڈر سمجھتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم، باب یعنی عربی میں فولڈر کو کہتے ہیں انگلش میں، اور عربی میں باب کہتے ہیں۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا نگر ہوں، اور علی اس کا فولڈر ہے، علی اس کا باب ہے،
आप समझ रहे हैं? उसी अली को 19 रमज़ान मुबारक में मस्जिद कूफा में सजदे की हालत में इब्ने मुलजिम नाम के खारजी ने जहर आलूद तलवार मारा था, सजदे की हालत में। 20 रमज़ान अली ने नमाज नहीं छोड़ी, रोज़ा नहीं छोड़ा, उसी हालत में रखा। 21 रमज़ान को वक्त का सबसे बड़ा जो डॉक्टर था, तबीब कहते हैं अरबी में, मुसलमान नहीं थे, पढ़ा लिखा मुसलमान कम होता था उस ज़माने में, ताज़ा एजुकेशन पे तवज्जो शुरू की थी, था उसको बुलाया। तो अली करमुल्लाह वजहुल्लाह के जो बड़े फर्जंद थे हसन, 15 रमज़ान को उनकी विलादत का दिन था। उन्होंने जब बुलाया, उसने चेक किया, ये सर का बाल नहीं होता है बड़ा, उस ज़माने में हर आदमी बड़े बाल रखते थे, जुल्फ रखा करते थे, खुद नबी पाक के भी जुल्फ हुआ करते थे। तो ये बाल को उस जख्म पे लगाया और उसके बाद क्या, उसने इम्तिहान किया और फिर उसके बाद एक तारीखी जुमला कहा कि हसन, आपके बाबा को जिस जहरीले तलवार से मारा गया, अगर एक कतरा वो जहर पूरे कूफे के कुएं में बांट के डाल दिया जाता और उसमें कुएं के पानी कूफे वाले पीते तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। ये सिर्फ अली की ताकत थी, खैबर शिकन अली की, कि जो अली अभी 3 दिन बचे हुए हैं, वो 21 रमज़ान को शहीद हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये 3 दिन हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं मौला अली के नाम से करते हैं। इसमें कोई दोष है? इसमें कोई गलती है? क्या सहाबी नबी नहीं है? क्या अलमबरदार नहीं है खैबर के? क्या उनके बेटे ने करबला में इस्लाम को नहीं बचाया है? यकीन रखिए, अल्लामा इकबाल की शेर को भी अच्छी तरीके से तफसीर कीजिए कि इस्लाम के दामन में बस 2 ही तो चीजें हैं। इस्लाम के दामन में बस 2 ही तो चीजें हैं, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। समझ रहे हैं आप? सजदा खत्म हो चुका होता अगर करबला में हुसैन इब्ने अली ने सजदा ना किया होता। करबला ने दोबारा इस्लाम को जिंदा किया है। बहरहाल, लिहाजा ये जो 3 दिन है, इस 3 दिन को हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो मौला अली के नाम से करते हैं। क्यों? इसलिए कि जिसको हजरत उमर, अंता मौलाई, आप मेरे मौला हैं, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। गदीर खुम में कहेगा, 3 दिन तक कह के मुबारकबाद दिया है जी। तो उसको हम मौला नहीं कह सकते। हम नहीं कहेंगे, कौन कहेगा? हिंदू कहेगा, क्रिश्चियन कहेगा। ठीक, अब चलिए मैं थोड़ी अपनी बात भी कर लूँ, थोड़ी सी साउंड कम कर दीजिए, क्योंकि मैं कभी कभी अपनों के दरमियान जज्बाती हो जाता हूँ। देखिए, मास्टर साहब मौजूद हैं, मैं फिर सादगी के साथ कह रहा हूँ, मैं एक अदना सा इस्लाम और दीन इस्लाम का तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ। मैं 3 काम पे तवज्जो देता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, और उससे पहले एक हदीस सुनाता हूँ, जैसे कि वो 3 काम मेरा साया होता है, यानी जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ साथ जाता है। और हदीस सुनाता हूँ, नहजुल बलागा एक किताब है कि जो सिर्फ यही मौला अली के खुतबों का मजमुआ है, उनके नामा यानी लिखे हुए ख़तों का मजमुआ है, उसका नाम है नहजुल बलागा। उसमें आप फरमाते हैं, अब दुनिया दिल्लुन ज़ाइल, दुनिया एक ज़ाइल होने वाला यानी ख़त्म हो जाने वाला साये की मानिंद है। समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? साया क्यों कहा? दुनिया क्यों साया है? कभी साये को पकड़ने के लिए कोशिश की आपने? साये को पकड़ पाए इमाम भाई, मास्टर साहब? तो साये को कभी पकड़ा नहीं जा सकता है। दुनिया को भी अगर आप पकड़ना चाहें, पकड़ नहीं पाएंगे। दुनिया आपकी मुट्ठी में नहीं आएगी। दुनिया की ख्वाहिशात, आज 1 तल्ला बनाया, कल 2 तल्ला बनाना है,
परसों 3 बनाना है, 4 बनाना है, 5 बनाना है। ख्वाहिशात का दम कभी जो है नहीं घुटता है। फिरौन का खजाना भी आ जाए फिर भी उसको कम लगने लगता है। लिहाजा अब दुनिया जिल्लुन ज़ाइलुन, दुनिया एक ज़ाय होने वाला साए की मानिंद है। अली फरमाते हैं साए की सिफत क्या है? साए से रूठ के नाराज होके आप भागो, वो आपके पीछे पीछे आएगा कि नहीं आएगा? तो दुनिया से आप भी मुंह मोड़ लो, देखो दुनिया आपके पीछे आएगी। बात मेरी समझ गए? एक मुसल्ले पर बैठकर मेरे नबी ने आज के दुनिया के 23 कंट्री पर हुकूमत की थी, अफ्रीका के मिस्र से लेके भारत के कोने तक। दुनिया से मुंह मोड़ा था, दुनिया पीछे पीछे आई। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? आप दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया आपसे आगे आगे भागेगी, नहीं कवर कर पाओगे। खैर ये बात आप समझ गए, अब साया समझ लीजिए। मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ साथ 3 साए चलते हैं। एक, एजुकेशन पे काम करना। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, पैदा हुआ मुसलमान के घर में, लिहाजा हर मुसलमान की बेटी मेरी बेटी है, हर मुसलमान लड़की मेरी बहन है, हर मुसलमान बच्चा मेरा बच्चा है या भाई है। मुझे फर्क नहीं करता कि मेरा बेटा या मेरे किसी गांव का बच्चा हो, मुसलमान है, बस कलमा गो है, इस्लामिक भाई है मेरा। जब से नेपाल में अभी आया 7 साल हो गया, मैं यहाँ भी काम करता हूँ। मैं यही ऐलान करता हूँ, अगर किसी गरीब का बच्चा है और उसने एंट्रांस दिया, एंट्रांस इनसे पूछ लीजिएगा क्या है, MCC बोलते हैं हमारे यहाँ इंडिया में, नीट बोलते हैं, यानी MBBS डॉक्टर बनने के लिए इम्तिहान 12वीं क्लास के बाद देना पड़ता है। अगर उसने दिया और वो पास हो गया और उसके पास पैसा नहीं है नेपाल में एडमिशन के लिए, चूंकि नेपालियों के लिए 33 लाख रुपये चाहिए, नॉन नेपाली के लिए 1 करोड़ चाहिए। मेरी बेटी खुद पढ़ रही है तो मुझे पता है 1 करोड़ मैं दे रहा हूँ। ये जो 33 लाख नहीं है इसके पास, मगर इस बच्ची का, इस बच्चे का, इसके माँ बाप का आरजू है कि हम MBBS बने। आए मेरे पास आए। जिस मुल्क में मैं कहूँगा, जिस कॉलेज में मैं कहूँगा खराब और आप नहीं होगा, दुनिया में चमकता हुआ होगा, हाई फाई होगा, हिजाब के साथ, नमाज के साथ, हलाल खाने के साथ मैं एडमिशन कराऊंगा, ओनली 6 लाख रुपए में। कि हम मुसलमानों को एक होना चाहिए, फिरकाबाजी छोड़ो, ये घरों मामला है। जब कोई हमारी बेटियों का हिजाब उतारता है दुनिया में, ये नहीं पूछता तो सुन्नी है या देवबंदी, पूछता है नहीं। जब कोई ताड़ी पकड़ के हमारे मुसलमान भाइयों को दूसरे देशों में आप जो हो रहा है देख रहे हैं, मारता है, तो पूछता है क्या कि तू किस फिरके का है? सुन्नी है तो छोड़ दूंगा, देवबंदी है तो मारूंगा, ये बोलता है? तो हम क्यों अलग अलग जो है फिरकाबाजी कर रहे हैं? आज फिलिस्तीन में क्या हो रहा है पता नहीं, इस गांव में आपको पता है कि नहीं पता, सबके बच्चों के पास मोबाइल है। इस रमजान में कितना अच्छा खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना अच्छा आपने इफ्तारी। ये नसीब नहीं है, 1 रोटी का 4-5 टुकड़ा करके बच्चे खा रहे हैं जी। कहाँ है मुसलमान? पूरा बकरा खाने वाला, ऊंट खाने वाला मुसलमान कहाँ गया? मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, दुनिया में ऐसे लोग हैं। अगर तुम पढ़ना चाहो ना, ये मत कहना मैं गांव में था, मैं पहाड़ में था, मेरे पास पैसा नहीं है। लोग हैं, पैसा देंगे तुम्हें, तुम आओ आगे बढ़ो। मसला ये है कि नेपाल के मुसलमान गुम है, पता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? रमजान आता है तो अगर हम निकलते हैं तो पता चलता है पोखरा में इतने मुसलमान, चूंकि टोपी है, रमजान के बाद टोपी जेब में आती है, ये नेपाली टोपी रहती है तो हमें पता ही नहीं चल पाता। हाँ? लिहाजा नेपाल में 10 मिलियन मुसलमान हैं, किसी को पता नहीं है। और नेपाल गवर्नमेंट का सलाम हो मुझे, धन्यवाद उसका। आपको छेड़ता नहीं है, आपको परेशान नहीं करता, आपको मारता नहीं है, आपसे प्यार करता है, आपके बच्चों को कोई भी पढ़ाई करे बाधा नहीं देता है। और क्या चाहिए आपको? आपका नाम अगर फला उद्दीन है, फला मोहम्मद है, तो नाम नहीं काटता है, ये अच्छी बात है, नेपाल का धन्यवाद। लिहाजा आगे बढ़े, आप पढ़ो।
यकी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। 3 चीज़ें याद रखिएगा। हम अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं, मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कोई अल्लाह का बंदा इसी नेपाल में छुपा हुआ हो और उसके ज़रिए से ये काम हल हो। दूसरी बात, जहाँ भी जाता हूँ, मसलन मैंने काठमांडू में एक ताना सुना। क्यों? मैं टीचिंग अस्पताल है वहाँ, तो गया, हमने डीन से बात की कि हम जितने भी मरीज हैं सबको इफ्तार देना चाहते हैं। कहा क्यों? हमने कहा मेरे घर में ज्यादा है, नहीं खा पा रहा हूं, इसलिए। तेरे को कुछ प्रॉब्लम है भाई? मैं देने आया हूं, लेने तो नहीं आया हूं। मना नहीं कर सकता है, वो चैरिटी का नियम होता है, हमें पता है। तो टीचिंग अस्पताल काठमांडू में तारीखी प्रोग्राम हुआ है। पहली मर्तबा, उसने कहा फिर बाद में, कि पहली मर्तबा कोई मुसलमान आया और आके उसने इफ्तार बांटा। क्योंकि आज तक जितने आते थे वो क्रिश्चियन आते थे, अंग्रेज या बुद्धिस्ट आते थे, कोई मुसलमान आज तक नहीं आया। तुम कैसे मुसलमान हो? समझ गए? ये माँ बहनें ना होती तो मैं वो जवाब बताता जो उसको दिया मैंने, कि कैसा मुसलमान। हाँ इमाम साहब, समझे आप? तो मैं उसको बताया कि कैसा मुसलमान। खुश हुआ, दोस्ती हो गई। उसके बाद हर साल मैं करता हूँ प्रोग्राम। पता उसने क्या बोला, वो भी बता दूं। उसने कहा ऐसा है डॉक्टर साहब, हमने देखा है मस्जिदों के बाहर जुमे की नमाज के बाद बांटते हैं, तो हमें ऐसा लगा मुसलमान कंजूस बहुत है, वो सिर्फ मस्जिद के चारों तरफ जो फकीर रहते हैं उसी को देता है और किसी को नहीं देता। हमने कहा नहीं, हम इफ्तार इसलिए करते हैं, हमारे नबी ने इसलिए इफ्तार करवाया, एक भी खजूर का दाना किसी अगर दूसरे को देते हो रमजानुल मुबारक में तो 70 रोजे से ज्यादा का सवाब है। हम इसलिए रोजा नहीं रखते हैं कि भूखे हैं यार, हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए रखते हैं ताकि भूखों के दर्द को समझ में आए प्रैक्टिकल तौर पर। बोला अच्छा ऐसा है? जी, हम तो समझते थे पैसा ऐसा होगा नहीं, साल में एक दफा सब मिलके पूरा महीना खाना नहीं खाते हैं। मैंने कहा नहीं, यकीन मानिए उस प्रोग्राम में बहुत कुछ मिला। बहुत सारे मरीज ऐसे थे जो मुस्कुराकर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उसकी मुस्कुराहट में बहुत राज था, बहुत बातें थी। लेकिन ये जो एक साथ बैठकर खाते हैं, इसमें बरकत है, इसमें मोहब्बत है, इसमें प्यार है, इसमें दिल की कदूरत दूर होती है, नबी ने सिखाया हमें। लिहाजा हम लोग एक दस्तरखान पर जब बैठते हैं 70 नफरतें दूर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इफ्तार का है, एक एक दाना जो है पवित्र होता है। मैं इसी पर इक्तफा करूंगा। अगर इजाजत हो, आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं मास्टर नूर मोहम्मद मियाँ साहब को एक छोटा सा हदिया देना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे एक इमाम का जुमला है, हदीस है कि अल हदियतो तजलबुल मुहब्बत। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम जाफर सादिक का ये जुमला है कि अल हदियतो तजलबुल मुहब्बत। हदियत यानी गिफ्ट मोहब्बत को जज्ब करती है। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आप सभी की जानिब से उनको एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ। इसी के ऊपर मैं इक्तफा करता हूँ क्योंकि नमाज का वक्त हो गया। वस्सलातु वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आज हमने जो बहुत कीमती बात सुनने का मौका पाए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जो कुछ जितना उम्मीद हमने रखे थे उससे भी बहुत ज़्यादा हमने पाए, बहुत ज़्यादा पाए। बहुत कुछ हमको मिला है। हम सब के तरफ से, गांव वालों सब के तरफ से डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम कबूल फरमाइए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक हिदायत भेजी है। आज हमको बहुत खुशी हुई है डॉक्टर साहब, और आपके जरिए इंशाअल्लाह हमारे गांव में एक दीन का ये सितारा चमकेगा, एक इल्म का सितारा चमकेगा। इंशाअल्लाह हम सब की कोशिश को अल्लाह ताला
मुकम्मल अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। और आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम को अपनी बातों के साथ